خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تعلیم کے افق پر جب استقامت، خلوص اور خدمت علم کے چراغ روشن ہوں تو وہاں ایک نام اجالے بکھیرتا ہے جو روشنی ہر خاص و عام کے دلوں کو مسخر کر دیتی ہے۔ سر مکرم حسین صدیقی۔ شعبہ تعلیم میں مسلسل جدوجہد کرنے کے بعد سر مکرم حسین صدیقی نے 1997 میں اپنے پہلے خواب کی بنیاد رکھی جس کا نام میک کالجیٹ پڑا، اور اگلے ہی برس میکوے گرامر اسکول کا سورج طلوع ہوا، اور یوں ایک مشن نے سفر اختیار کیا جو آج بھی رواں دواں ہے۔ آج ان کی زیر سایہ صرف ادارے نہیں بلکہ ایک نظریہ پروان چڑھ رہا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد کردار سازی ہے، نہ کہ محض کامیابی۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سر مکرم کی شخصیت کو آپ نے کس طرح پایا، ایز اے انسان آپ نے ان کو کس طرح پایا، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اگر ہم سر مکرم کی شخصیت پہ بات کر رہے ہیں، میں نے سر مکرم کو ایک منکسر المزاج اور بلند اخلاق پایا۔ آپ کی بلند اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ آپ خود بڑھ کر سلام کرتے ہیں۔ بسا اوقات سامنا ہوتا ہے تو جائے کہ ہم ملازم بحیثیت ٹیچر کے ہوئے باس کے، لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں ہوا، ہم نے نہیں دیکھا کہ سر مکرم نے انتظار کیا ہو کہ سامنے والا انہیں سلام کرے، بلکہ خود آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں۔ ان کے ساری رواداری، برابری میں آپ کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ سر مکرم کو ایک علمی و فکری شخصیت کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ نے کس طرح پایا، یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں 2010 سے سر مکرم حسین صدیقی صاحب کے اس تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوں، اور میں نے بہت قریب سے سر مکرم حسین صدیقی کو دیکھا ہے۔ سر مکرم حسین صدیقی ویسے تو علم کیمیا کے بے مثال استاد ہیں، لیکن میدان تعلیم و تربیت میں سر مکرم حسین صدیقی ایک پھولدار، پھلدار، سایہ دار بلکہ خوشبودار درخت کی مثال رکھتے ہیں۔ سر مکرم حسین صدیقی سے جب بھی کوئی بات کرے تو وہ ہمیشہ علم کی بات کرتے ہیں، عمل کی بات کرتے ہیں، تربیت کی بات کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کا ہر فرد علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ بلا شبہ پچھلے کئی دہائیوں سے وہ ہزاروں طالب علموں کو زیور علم سے آراستہ کر چکے ہیں۔ سر مکرم حسین صدیقی ایک بے مثال علمی شخصیت ہیں، اور کوئی بھی اسٹیج ہو، کوئی بھی موضوع ہو، سیاست ہو، میدان علم ہو، تدریس ہو، تربیت ہو، یا اسلامیات ہو، یا سیاسیات ہو، یا عمرانیات ہو، ہر موضوع پر ان کو اگر لب کشائی کرنے کا موقع ملے تو وہ فی البدیہہ بولنے کی قوت رکھتے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں، اور یہی ان کے علمی شخصیت ہونے کی واضح مثال ہے اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ سر مکرم حسین صدیقی کی گفتگو علم و حلم کا حسین امتزاج ہے۔ وہ صرف اپنے بیان سے نہیں، اپنے عمل سے سکھاتے ہیں۔ وہ ایسے استاد ہیں جو نصاب سے نہیں، تجربے سے سکھاتے ہیں۔ سر مکرم کی کوئی 3 بیسٹ کوالٹیز جو آپ نے آبزرو کی ہوں، وہ آپ مجھے اپنے لفظوں میں بتائیں تو وہ کیا ہوں؟ سر مکرم کی سب سے بڑی کوالٹی، سب سے پہلے ایک بہت اچھے انسان، ہی از اے ویری گڈ پرسن، اے ویری گڈ ٹیچر، اے گائیڈ، اے مینٹور۔ ہی گیوز ریسپیکٹ ٹو آل دا پیپل، سب کو عزت دینے والے ہیں وہ، اینڈ he knows how to work with the team, he knows how to guide them، اور ان کی یہ کوالٹیز جو ہیں وہ انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہیں۔ سر مکرم حسین کی شخصیت میں نظم، بردباری اور خلوص ایک ہی لڑی میں پروئے گئے ہیں۔ یہی خصوصیات ان کی شخصیت کا نکھار ہے۔ 35 برس سے زائد کی مسلسل محنت، ایک ایسا سفر جس میں نہ تھکن تھی
ना तवक्कुफ। एक ऐसा सफ़र जो हिम्मत और अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। सर मुकर्रम ने तालीम को इबादत के तौर पर अपनाया और उसे नस्लों तक पहुंचा दिया। एक बेसिकली एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर सर का क्या इम्पैक्ट है सर मुकर्रम का, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। स्टूडेंट लाइफ में सर का बड़ा वैल्यूएबल इम्पैक्ट है। बच्चे ना सिर्फ उन्हें एक एक्सपीरियंस टीचर बल्कि उन्हें अपना मेंटोर और इंस्पिरेशन समझते हैं। आई हैव बीन हियर सिंस 5 years एंड द थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय करियर कि बच्चे जो हैं यहाँ पर सर से अब तक वो स्टूडेंट जो 2-3 years बिफोर पास आउट होकर जा चुके, अब जब वो यूनिवर्सिटी की जानिब उन्हें अपना गोल अपना एम हासिल करना है, अब वो अपने स्कोप के लिए जो है वो सर से अभी तक आते हैं कि वो सर से अपना जो है वो गोल डिस्कस करें। तो आजकल के बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से भी अपना फ्यूचर अपना गोल डिस्कस नहीं करना चाहते, बट वो सर के पास आते हैं। तो डेफिनेटली कि सर की वैल्यू है, उनका इम्पैक्ट है, वो उनके लिए इंस्पिरेशन है। इसलिए जो है बच्चे अब तक सर को इतना पसंद करते हैं और नो डाउट कि सर ने बच्चों की लाइफ में जो है उनके दिलों पे जो है अपनी वैल्यू बनाई हुई है और बच्चे चाहते हैं कि वो सर से अपने फ्यूचर को डिस्कस करें। और बहुत सारे पेरेंट्स जो एडमिशन के लिए भी मेरे पास आते हैं, अक्सर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं। दैट मीन्स कि वो अपनी जनरेशंस को भी सर के अंडर गाइडेंस उनके सुपरविजन में ही एडमिशन करवाना चाहते हैं। एक उस्ताद सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ सबक याद करवाए, बल्कि हकीकी मायनों में उस्ताद वो होता है जो ज़िंदगी के मायने समझा दे, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करना सिखाए। एतमाद वो एहसास है जो एक उस्ताद की सबसे बड़ी कामयाबी है। सिर्फ तलबा का एतमाद ही नहीं बल्कि वालिदैन का एतमाद भी उतना ही ज़रूरी है, और सर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी ने यह एतमाद यह एहसास वालिदैन के दिलों में पैदा किया। तो सवाल मेरा एज अ पेरेंट होगा आपसे कि एज अ पेरेंट आपने सर मुकर्रम को किस तरह पाया बच्चों के साथ, उनकी बच्चों के साथ जो वाकफियत है, बच्चों के साथ जो उनका अंदाज है, वो किस तरह बच्चों की लाइफ के ऊपर असर करता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सर बीइंग अ पेरेंट्स, मेरी जितनी बार भी सर मुकर्रम से मुलाकात हुई ना, तो उनकी कई खुसूसियात ने मुझे इंस्पायर किया ना। सबसे पहले तो ये कि मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनना, और ना सिर्फ सुनना बल्कि उसका फौरन हल भी करना। दूसरे, उनका धीमा लहजा और नरम गुफ्तारी ऐसी कि सामने वाला अपनी बात बड़ी आसानी से उनसे शेयर कर सके। और तीसरे, हमारे बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। ना सिर्फ उनकी तालीमी सरगर्मियों पे उनकी कड़ी नज़र होती है, बल्कि उनकी शख्सियत को निखारने में जो किरदार वो अदा करते हैं उसकी आज के माशरे में तो सर कहीं मिसाल नहीं है। बस ये कहूँगी उनके लिए कि ऐसे लोग बहुत नायाब होते हैं। इस्तिकामत वो सिफ्त है जो ख्वाबों को ताबीर देती है, और यही सर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी की जिंदगी की पहचान है। सर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी की जो मुस्तकिल मिजाजी की जो बात करते हैं हम लोग, उस मुस्तकिल मिजाजी को आपने किस तरह ऑब्जर्व करा है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। सर की मुस्तकिल मिजाजी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मुस्तकिल मिजाजी की मिसाल सबसे बड़ा जो सबूत है वो हमारे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह सर के पास 5 कैंपस जो हैं सर के रनिंग में हैं, काम कर रहे हैं। 5 कैंपस में माशाल्लाह स्ट्रेंथ भी इतनी ही है, हमारा स्टाफ भी माशाल्लाह बहुत प्रॉपर वे में काम कर रहा होता है। तो उस 1998 में तकरीबन सर मुकर्रम ने इस काम का इफ्तिताह किया था, इस काम को लेकर चले थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल मुकम्मल होने के बाद जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया 14 सालों में, तो उनको अब हर किसी भी वक्त में, मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त में भी उनको अपने मकाम पर, अपने फैसले पर डटे रहने पर मैंने उनको देखा, डटे हुए देखा। और उनको यही मैंने ऑब्जर्व किया कि सर जो है बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी से अपने हर काम को परफॉर्म करते हैं, हर ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं। अपने एम्प्लॉइज़ के साथ भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत से और इत्तेफाक से बात करते हैं। इस इदारे में ऐसा क्या डिफरेंट आपने पाया जो सर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी के इस इदारे को बाकी इदारों से मुख्तलिफ बनाता है, ये थोड़ा सा बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु खैरुल माकिरीन। एजुकेशन इज अ की ऑफ सक्सेस। यस, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी मिसाल जो है वो मैकवे ग्रामर स्कूल है कि आज से 29 साल पहले सर मुकर्रम ने जो तालीम के फरोग के लिए एक पौधा लगाया था, जो आज फल फूल कर एक तनावर दरख्त बन चुका है, और एक कैंपस से अब ये 5 कैंपस बन चुके हैं। अगर मैं इसका मवाजना दूसरे स्कूल से करती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बात समझ आती है कि दूसरे स्कूल में जहाँ पर
करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं तो वहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात मुझे ये नज़र आई कि यहाँ पर 7 इंटेलिजेंसेस को मद्देनज़र रखा जाता है। सेकेंडली मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि मैंने एक चीज़ यहाँ पर और नोट की है कि यहाँ पर लेस प्रिविलेज और एलीट क्लास के बच्चे आते हैं, लेकिन कभी भी इनके दरमियान मैंने कोई तफरीक नहीं देखी। इन दोनों को हर साथ मिलाकर चलाया जाता है, चाहे बच्चे जो है वो किसी जगह से भी बिलोंग करते हो, किसी जबान से बिलोंग करते हो, लेकिन उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा जाता। इस इदारे की फिजा में इल्म के साथ तरबियत की खुशबू रची बसी है। एक ऐसा माहौल है जहां दिल भी सीखते हैं और दिमाग भी। हर इदारा अपने बानी का अक्स होता है। इदारों में हमें उनकी बसीरत, उनकी नरमी और उनकी क़यादत छलकती दिखाई देती है। क्वालिटीज़ के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सर मुकर्रम के अंदर एज ए इंस्पिरेशन ऐसी कौन सी चीज़ें नोट करी, ऐसी कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करी जो उनको आज के बच्चों के लिए या फिर अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, हर बंदे के लिए एक रोल मॉडल बनाते हैं, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल। As far as I found him incredibly dedicated, passionate and committed toward education. ये इनका विजनरी लीडरशिप ही है कि इन्होंने इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को एक ऐसा नर्चरिंग एनवायरनमेंट दिया है where the students are thrive to grow with their best of their capabilities. और above all इन सब चीज़ों के अलावा his resilience and kind nature, his positive energy, strongly analytical thinking capabilities, ये वो खुसूसियात हैं इनकी शख्सियत की जो बहुत गैर मामूली हैं, और ये वो खुसूसियात हैं इनकी शख्सियत की जो उन्हें सही मायनों में हम सब के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन और एक रोल मॉडल बनाते हैं। अच्छा सर, फाइनली सर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी के लिए चंद अल्फाज आपसे भी सुनना चाहेंगे। सर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी, I would say Sir Mukarram Hussain Siddiqui is a name of a successful journey, a journey of joy, a journey of happiness, journey of accepting the challenges, journey of academic excellence, a journey of dynamic leadership, a journey of outstanding management, a journey of problem solving. Sir Mukarram Hussain Siddiqui has blessed with enormous qualities. I would discuss only one of the main quality which I have found in him, that he has the ability or he has the vision to win every single race of his life. Mukarram Hussain Siddiqui has been nurturing the nation for last more than 35 years, and I have seen very rare people in my life who have that much long, successful, consistent journey. और इंशाल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ, पर उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजता रहे, और हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला उनके नाम के साथ बहुत सारी कामयाबियाँ और उनके कदमों में देखते रहेंगे। और दुआ गो हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली तवील ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, और उनका साया हम सब पर सलामत रखे। वक्त गुजर जाता है मगर किरदार बाकी रह जाते हैं। सर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी एक नाम, एक रोशनी, एक अहद इल्म। उनकी मेहनत आज के तलबा में सांस लेती है, उनकी तरबियत हर उस्ताद के रवैये में झलकती है, और उनकी बसीरत हर कामयाबी के पस मंज़र में चमकती है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत, इज़्ज़त और इल्म की मज़ीद रिफ़तों से नवाज़े। आमीन।